हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम लिवर एंजाइम्स के बारे में जानेंगे। सो दीज आर द कॉमन लिवर एंजाइम्स। सीरम ट्रांस अमाइनेजेस, उसमें आता है एएसटी, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेजेस, विच वाज अर्लियर कॉल्ड एज एसजीओटी, एंड एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेजेस, एएलटी और एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेस और एएलपी, gamma glutamyl transpeptidase or GGT, and 5 prime nucleotidase और 5 prime NT. सो whenever आप एक लिवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट देखोगे, so you will see that AST, ALT, sometimes you even get the AST ALT ratio, you'll get the GGTP, and you will get the alkaline phosphatase. So all these are called as the enzymes which the liver will produce. So why are these enzymes required? क्यों चाहिए हमको ये liver enzymes? ALT जो है that is required for protein metabolism. So हमारे muscles को build करने के लिए amino acid चाहिए. So amino acids are the ones, the protein building blocks which will be required to build the tissue, to repair the tissue. So for the protein metabolism you require this enzyme ALT. वैसे ही AST, that is amino acid metabolism, again in for the protein metabolism and also for the energy production. So ये amino acid को use करके it will also produce energy. तो वो production के लिए AST चाहिए. Alkaline phosphatase, ये किसके लिए चाहिए? Bile production, and bile is very important digestion करने के लिए, ठीक से digest होने के लिए, जो digest हुआ है उसको absorb करने के लिए, bowel movement के लिए, आप तो ये प्रोडक्शन में अल्कलाइन फॉस्फेटेस हेल्प करता है. एंड जीजीटी, दैट इज फॉर ग्लूटाथायोन मेटाबॉलिज्म, लिवर को बहुत सारे इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है, टॉक्सिन से प्रोटेक्ट करता है. सो ऑल दीज एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. सो लिवर एंजाइम्स को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. एक है हेपेटिक, that is related to the liver, and second is cholestatic, that is related to the biliary duct. So hepatic मतलब main कौन सा है? AST and ALT, and cholestatic मतलब remember it is alkaline phosphatase and GGT. ये सभी आपको चाहिए क्योंकि whenever there is an increase, आपको interpret करने के लिए you have to know the basics of this. So hepatocellular arrangement, जब भी हम बोलते हैं कि ये AST ALT जो है that is रिलेटेड टू द लिवर, मतलब इफ एट ऑल लिवर इंजुरी होता है तो AST एंड ALT है जो ज्यादा राइज होते हैं. एंड अगर कोई कोलेस्टेटिक मतलब बिलियरी डक्ट से रिलेटेड है तो ज्यादा एलिवेट होते हैं हमारे अल्कलाइन फॉस्फेटेस एंड GGT. सो अगर ये AST एंड ALT मैंने बताया है कि ये अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में एंड हमको क्रेब्स साइकिल में, ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमको मसल्स बिल्ड करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वी नीड दिस एंजाइम्स AST एंड ALT. AST जो है सिर्फ लिवर में नहीं मिलेगा आपको, यू विल ऑल्सो फाइंड इट इन द स्केलेटल मसल्स, और यू विल फाइंड इट इन द हार्ट, यू विल फाइंड इट इन द किडनी एंड ब्रेन में भी मिल सकता है. सो ये सभी इंजुरीज में भी AST राइज हो सकता है. whereas ALT, its greatest concentration is in the liver, it is more specific to the liver. so अगर ALT बढ़ता है तो we feel that yes, this is something which is related to the hepatocyte injury और the liver injury हो रहा है, इसके वजह से ये लिवर में ये ब्लड में ज्यादा हो रहा है. Similarly, you have alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase, I have told you, this enzyme जो रहता है ये enzyme, it is required for the metabolites का transfer करने के लिए across the cell membrane. ये bile duct के epithelial cells में रहता है. So this alkaline phosphatase also, it is just not present in the liver. Bone में भी ये रहता है, intestine में रहता है, placenta में रहता है, kidneys में रहता है. And the gamma glutamyl transpeptidase, इसका काम क्या है? For the synthesis and breakdown of glutathione. So this is also produced by the liver, biliary epithelial cells and renal tubules. So where is the alanine amino transferase or ALT? It is present in the cytosol. ये एक hepatocyte है, and in the hepatocyte you will see that this is the cytoplasm. So in the cytoplasm you will see that this is the ALT, alanine aminotransferase, whereas
you will see that the AST is seen in the mitochondria, also in the cytosol. So here is the presence of this AST. And alkaline phosphatase, you can see here the alkaline phosphatase. This is on the canalicular system. This is the biliary duct. So यहाँ के इसके epithelium में रहता है alkaline phosphatase. And even the gamma glutamyl transferase. So GGT also will be seen in the canalicular system also. It is also seen in the microsomes. Dehydrogenase what is there? That is present in the साइटोसॉल. सो ये एंजाइम्स एक हेपेटोसाइट में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. ये क्यों हमको इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर लिवर में कोई हेपेटोसाइट में कोई इंजरी हो गया तो ALT बढ़ेगा, AST बढ़ेगा. अगर बिलियरी डक्ट में कोई इंजरी होगा तो हमको यू विल हैव द अल्कलाइन फॉस्फेटेज, GGT बढ़ेगा. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट AST एंड ALT जो है ये हेपेटोसाइट्स के अंदर रहेंगे एंड द ALP एंड द GGT आर located in the canalicular system within the bile duct, that is outside the liver cells. So whenever there is a damage, suppose ये liver cell है, इसको necrosis हो गया, तो यहाँ के जो भी enzymes है, now ये necrosis किस वजह से हो सकता है? शायद कोई टॉक्सिन्स के वजह से, कोई ड्रग्स के वजह से, वायरल हेपेटाइटिस के वजह से, सो अल्कोहल के वजह से लिवर सेल डैमेज हो रहा है. जो जैसे डैमेज होगा, जो अंदर जो एंजाइम्स है वो निकल आ जाएंगे, निकल आके ब्लड में आ जाएंगे एंड वी विल गेट उनके वैल्यूज एलिवेटेड व्हेन वी टेस्ट दैट ब्लड और सीरम. सो ये है नॉर्मल रेंजेस. ALT is 7 to 55 units per liter, AST up to 48 units per liter, alkaline phosphatase is up to 120 units, GGT is up to 61, and 5 prime nucleotidase is up to 15, and LDH is also between 122 to 200 units per liter. So I have told you that हम liver enzymes को कैसे classify करते हैं. One is hepatic and one is cholestatic. So hepatic में जो hepatocyte injury को depict करता है, so those are the hepatic enzymes. So those are AST and ALT. तो कब ये ज़्यादा elevate होंगे? कोई alcoholic liver disease हो या autoimmune hepatitis हो जिसमें से hepatocyte damage हो रहे हैं, viral hepatitis हो जो hepatocyte को damage करेगा, medicines हो या alcohol हो, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो जो फैट जाके हेपेटोसाइट में बस जाएगा एंड लिवर सेल को डैमेज करेगा, या तो लिवर जो हेपेटोसाइट है उसमें कोई एंजाइम डेफिशिएंसी आ गया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी आ गया या विल्सन्स डिसीज आ गया. सो ये सभी चीजों में हेपेटोसाइट डैमेज होंगे, हेपेटोसाइट नेक्रोसिस होंगे. सो जब नेक्रोसिस होंगे तो ये जो एंजाइम्स जो हेपेटोसाइट में रहेंगे ALT एंड AST ज्यादा बढ़ेंगे. ओके. And cholestatic means this is related to alkaline phosphatase and GGT. So यहाँ पे क्या होता है, जब भी ये biliary duct में कोई obstruction हो जाए, वो शायद गाल स्टोन से हो या तो कोई मेडिसिन से हो या कोई यहाँ पे कैंसर हो जो ब्लॉक कर रहा है, तो ये biliary सिस्टम में बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है. biliary canalicular, मैंने आपको पहले बताया था कि ये biliary canalicular epithelium में रहते हैं, तो इनके लेवल ज्यादा बढ़ेंगे कंपेयर टू AST एंड ALT. So in case of biliary sclerosing cholangitis, biliary cirrhosis, autoimmune cholangiopathy, sarcoidosis ऐसे कोई infection में ये the biliary system will be involved and this level will rise. So whenever there is an elevated liver enzyme, we have to interpret in a certain way. आगे के slides में या आगे के classes में भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बट ब्रीफली मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी आपके liver enzymes elevate हो गए तो you will have to first think ये क्या हेपेटोसेलुलर हो सकता है या कोलेस्टैटिक हो सकता है. सो अगर हेपेटोसेलुलर होगा तो यू रिमेंबर दैट ALT और AST अल्कलाइन फॉस्फेटेज से ज्यादा बढ़ेंगे, और अगर कोलेस्टैटिक होगा तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा AST और ALT टू कंपेयर. तो ये पहले चाहिए हमको क्लासिफाई करना कि वेदर इट इज हेपेटिक या कोलेस्टैटिक.
चलो हमने उसको हेपेटिक हमने क्लासिफाई कर दिया, हमको एएलटी और एएसटी ज्यादा मिल रहा है। तो एएसटी और एएलटी ज्यादा मिल रहा है तो कितना ज्यादा मिल रहा है? माइल्ड एलिवेशन है, ओनली अप टू लेस देन 5 टाइम्स द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, उससे है। या तो मॉडरेट एलिवेशन है, 15 टाइम्स बढ़ गया है अपर लिमिट से, या तो मोर देन 15 टाइम्स बढ़ गया है, उसके हिसाब से भी वी कैन क्लासिफाई। सो वी विल हैव टू क्लासिफाई इट एज whether it is mild, मॉडरेट एंड सीवियर, बिकॉज उसके कॉजेस भी अलग रहेंगे। अगर माइल्ड है तो दीज आर द कॉजेस, अगर सीवियर है तो दीज आर द कॉजेस। सो अकॉर्डिंगली वी कैन इंटरप्रेट, या तो वी कैन नैरो डाउन हमारा डायग्नोसिस। सिमिलरली अगर कोलेस्टैटिक जॉन्डिस में समझिए आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज्यादा बढ़ गया एंड यू क्लासिफाइड इट एज कोलेस्टैटिक जॉन्डिस, तो अगर अब जब अल्ट्रासाउंड करोगे तो हम देखेंगे कि बाइल डक्ट्स कैसे है भाई। तो बाइल डक्ट तो यहाँ पे नॉर्मल है, या तो बाइल डक्ट डायलेट हो गए हैं। तो अगर बाइल डक्ट डायलेट होते हैं एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ रहा है, तो क्या वहां पे स्टोन है, या तो कोई कार्सिनोमा है, या तो पैनक्रेटिक कार्सिनोमा, कोलेंजियो कार्सिनोमा, या कोई स्ट्रक्चर है जिसके वजह से बाइल डक्ट डायलेट होके एएलपी बढ़ रहा है, या तो नॉर्मल बाइल डक्ट आ गए फिर भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ रहा है। तो ये सारे कंडीशन से वो बढ़ सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई and come to a conclusion as to whether it is hepatic or whether it is cholestatic, and if it is rising, how much is the rise. So most common causes of elevated liver enzymes are medicines, क्योंकि liver आपको पता है ड्रग टॉक्सिसिटी में वो मेटाबॉलिज्म में ये बहुत काम करता है। If at all there is fatty liver, there can be increased liver enzymes. If at all there is an viral infection, hepatitis A, B, C, autoimmune hepatitis, that can cause elevated liver enzyme. Hemochromatosis, ये आपको पता है liver stores iron, so if it is increased then it will lead to hemochromatosis. The other causes of elevated liver enzymes are if there is an alpha 1 antitrypsin deficiency, या liver का कोई कैंसर है, या सीलियाक डिसीजेस है, ये इंटेस्टाइन में हीमोलाइसिस ज्यादा हो रहा है, या तो ओबेसिटी ज्यादा है, फैटी लिवर डिसीज, या तो मसल में कोई ब्रेकडाउन ज्यादा है, थायराइड डिसीज, विल्सन्स डिसीज, ऑल दिस कैन लीड टू इंक्रीज्ड लिवर एंजाइम्स। सो ये एक स्लाइड है विच विल टेल यू हाउ वी इंटरप्रेट इट। फॉर एग्जांपल अगर कोलेस्टेसिस है, सो कोलेस्टेसिस मतलब इट इज समथिंग रिलेटेड टू द बिलियरी डक्ट, इजंट इट? सो यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ेगा, जीजीटी ज्यादा बढ़ेगा, एएसटी एएलटी भी बढ़ सकते हैं बट ज्यादा अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड जीजीटी बढ़ेगा। अल्कोहलिक लिवर डिसीज, सो अगर अल्कोहलिक लिवर डिसीज में क्या होता है, ज्यादा जीजीटी बढ़ता है। जीजीटी देख के ही हमको पता चल जाता है कि यस पेशेंट इज ड्रिंकिंग अल्कोहल, सो जीजीटी ज्यादा बढ़ जाता है। AST and ALT also will be increased, but in alcoholic liver disease AST and ALT का अगर हम रेशियो देखेंगे that ratio will be more than 2. एंड इन केस ऑफ हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एक्सेट्रा में क्या हो जाता है, एएसटी एंड एएलटी ज्यादा बढ़ता है क्योंकि ये लिवर डैमेज कर रहा है ना हेपेटोसाइट को। सो ये ज्यादा बढ़ता है कंपेयर टू एएलपी एंड जीजीटी। सपोज इश्कीमिया है, ब्लड सप्लाई कम होके लिवर हेपेटोसाइट को डैमेज हो रहा है, तो देयर विल बी मैसिव इंक्रीज इन एएसटी एंड ALT. Even in toxicity there is massive increase in AST and ALT. So this is just a brief idea कि कैसे liver enzymes elevate हो सकते हैं and what should be our approach in identifying the pattern of the elevated liver enzymes. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.